Good morning, dear students. So today in this video we will discuss the lesson We are not afraid to die if we can all be together. So let me start the lesson. This is class 11th and the name of the book is Hornbill. Chapter number 2, We are not afraid to die if we can all be together. And it has been written by Gordon Cook and Alan East. So let me start with the introduction of the lesson. It has been written by Gordon Cook and Alan East. The story is about a 37-year-old businessman who is the narrator of the story. So this story is about a businessman who is 37-year-old. This is quite important to remember from your test point of view कि वो 37 years के हैं and he himself is the narrator of the story. वो खुद ही इस story को सुना रहे हैं. He has a wife named Mary and two children, Jonathan aged 6 and Suzanne aged 7. So this is his family. The name of his wife is Mary and he has two children. First one is Jonathan, his age is 6 years, and other is Suzanne, whose age is 7 years. This is quite important to remember also. He and his wife both dream of a voyage around the world on their ship Wave Walker, which is a 23-meter long, 30-ton wooden hull, just like that of our famous Captain James Cook. He and his wife both dream. वो और उसकी पत्नी दोनों ही सपना देखते हैं कि वो एक वोयेज करें, समुद्री यात्रा को करें, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की एक समुद्री यात्रा करें अपने शिप के द्वारा जिसका नाम है वेव वॉकर. ये इंपॉर्टेंट है, जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ध्यान रखना है. And the length of the wave walker is 23 meter long. So the name of their ship is Wave Walker. Its length is 23 meter long and 30 ton is the weight. Wooden hulled, लकड़ी के ढांचे का बना हुआ है. Just like that of a famous Captain James Cook. जिनको वो कॉपी कर रहे हैं कैप्टन जेम्स कुक को, जैसा उनका जहाज बना हुआ था बिल्कुल एज इट इज इनका बना हुआ है. The whole family started sailing from Plymouth. This is very important. This is not Plymouth. This is Plymouth, England on July 1976. किस प्लेस से स्टार्ट हुए हैं? Plymouth is the place and this is a city in England and they started their journey or they started their voyage on July 1976. This is very important. The initial phase of 3-year-long journey was from Africa to Cape Town. So पहला जो उनका फेज था जर्नी का वो स्टार्ट हुआ है अफ्रीका केप टाउन तक. अफ्रीका टू केप टाउन, सॉरी. इट वॉज प्लेजेंट. वो बड़ा अच्छे से जो उनके पहला फेज जो है निकल गया. वाइल हेडिंग ईस्ट, जब वो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट से ईस्ट के पार्ट तक जा रहे थे, अलोंग विद 2 न्यूली हायर्ड क्रूमैन, तो रास्ते में जाते जाते उन्होंने क्या किया है, अपने परिवार के साथ 2 और मेंबर्स को उन्होंने हायर किया है अपने साथ, जो कि उनके वोयेज में हेल्प करेंगे. स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट दैम एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन. तो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगी और उनका जो एक यात्रा थी वो क्वेश्चनेबल बन गई कि वो पूरी हो पाएगी या नहीं. द स्टोरी टेल्स अस अबाउट हाउ दे फोर्ट ईच डे एंड सर्वाइव टिल द एंड. सो ये स्टोरी हमें बताती है कि हर रोज़ उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया और आखिरकार जीवित रहने में वो आखिरकार कैसे सफल रहे. सो देखिए, अब आइए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द लेसन. So we are not afraid to die if we can all be together. Summary. The narrator and his wife plan a voyage around the world just like famous Captain James Cook. Narrator और उनकी पत्नी एक समुद्री यात्रा का प्लान बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के ही चारों ओर, जैसे कि फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, बिल्कुल उनको कॉपी करने के लिए. They have been preparing and perfecting their seafaring skills for the last 16 years. पिछले 16 ईयर से वो अपने समुद्री यात्रा करने की जो स्किल्स थी उनके लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे और प्रिपेयर कर रहे थे, परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. दे गेट अ शिप विच इज़ 23 मीटर लॉन्ग एंड वेज 30 टन्स वुडन हल्ट. सो उन्होंने एक जहाज़ जो है प्राप्त किया, तैयार किया, जो कि 23 मीटर लॉन्ग था और 30 टन उसका वेट था, और उसका नाम जो उन्होंने रखा है इट वॉज वेव वॉकर. दे टेस्ट इट इन द रफ वेदर फॉर मंथ्स. सो बिल्कुल ही बुरे मौसम के अंदर उन्होंने इसको टेस्ट किया लंबे समय तक, ताकि
उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। In July 1976, they all start their journey from the Plymouth, England. So this is very important. Remember the date and the year or name of the month. They sail from Africa to Cape Town, which was quite a pleasant journey. अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक वो पहुँचे हैं और ये वाला पार्ट उनका बड़ा ही प्लेजेंट रहा. So let me show you on the map. So this was the place. This is England here, and they started their journey from here, and from there this is Cape Town here, South Africa, the southern part of African continent. This is Cape Town, and they have to reach there. साउथ अफ्रीका से यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक उनको पहुँचना था, बट यहाँ पर बीच में एक आइल एम्स्टरडम है. एम्स्टरडम नाम से आइलैंड है, वहाँ पर जाकर वो बीच में रुकेंगे. यहीं तक हमारी स्टोरी है. अफ्रीका के इस पार्ट से, वेस्टर्न पार्ट दिस साइड एंड दिस इज ईस्टर्न पार्ट. बिफोर हेडिंग ईस्ट द नरेटर हायर्ड 2 क्रूमैन. वेस्टर्न पार्ट से अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में जाने से पहले उन्होंने 2 क्रूमैन को अपने साथ हायर किया, एंड देयर नेम वर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैरी वीजल एंड हर्ब सिगलर, टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन. सदर्न इंडियन ओशन जो कि सबसे रफेस्ट सी है, उसमें उनकी हेल्प करने के लिए. अगेन लेट मी शो दिस ऑन द मैप. This is the Southern Ocean and this is Indian Ocean, and in between this part is Southern Indian Ocean. They encounter strong and alarming waves during the second day. Second day उनको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना कर देने वाली और बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग जो वेव्स का सामना करना पड़ा. By December 25, they all managed to reach 35,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. केप टाउन के ईस्ट में वो पहुंच गए हैं. दिस इज केप टाउन हियर, और ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर वो पहुंचने में जो है सफल हो जाते हैं. द फैमिली समहाउ मैनेजेस टू सरपास द बैड वेदर एंड सेलिब्रेट्स क्रिसमस टुगेदर. सो फैमिली जो है, जो बुरा मौसम है उसको पार करने में, उसको जो है सामना करने में सफल हो जाती है, और केप टाउन के ईस्टर्न पार्ट में जाकर वो जो है क्रिसमस वहाँ पर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं. द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स एंड ऑन जनवरी 2 द बिग वेव्स हिट दैम. अब उन्होंने आशा की थी कि मौसम चेंज होगा, वेदर चेंज हुआ, परंतु और भी बुरा हो गया वो. दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन बाय ड्रॉपिंग स्टॉर्म जिब एंड हिट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस अ स्टर्न, बट इट डजंट हेल्प दैम. तो उन्होंने स्टॉर्म जिब को गिराकर सोचा कि जो जिस स्पीड से जहाज आगे बढ़ रहा था उसको रोकने की ट्राई की. इट डजंट हेल्प मच, परंतु इससे कोई ज़्यादा उनको सहायता नहीं हुई. हैवी मूरिंग रोप क्या होता है? जहाज को बांधने के लिए जो रोप यूज़ की जाती है उसको कहते हैं. दे कैरी देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, अटैच लाइफ लाइन्स. राफ्ट ड्रिल्स क्या होती हैं? लाइफ राफ्ट ड्रिल्स आप देखते होंगे कि बड़े समुद्री जहाज में छोटी छोटी किश्तियाँ हम रख लेते हैं, बोट रख लेते हैं, ताकि इमरजेंसी के टाइम उनके द्वारा एस्केप किया जा सके. अटैच लाइफ लाइन्स, डोन लाइफ जैकेट एंड ऑयल स्किन्स. सो लाइफ लाइन्स को अटैच उन्होंने अपने साथ कर लिया, जो जो वहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं ऑक्सीजन वगैरह के लिए. डोन लाइफ जैकेट, डोन मीन्स पहन लेना या लगा लेना किसी चीज़ को. लाइफ जैकेट्स ऐसी जैकेट्स होती हैं जिनके अंदर हम हवा भर देते हैं, जो कि हमें डूबने से बचाती हैं. एंड ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स होती हैं स्किन टाइट, जो हमारा एक कॉटन का कपड़ा होता है उसके ऊपर ऑयल की जो एक लेयरिंग कर देते हैं ताकि वो उसके अंदर पानी ना जा सके. वाटर प्रूफ वो बन जाती है, जो कि आपने देखी होगी ड्रेस होती है स्विमर्स वगैरह की, दैट इज़. Later in the evening, a vertical and huge wave strikes the ship and narrator is thrown off from the ship. So शाम को बाद में क्या होता है? एक वर्टिकल यू नो वेरी वेल, perpendicular to the earth. So एक वर्टिकल ह्यूज वेव आती है, वो शिप को स्ट्राइक करती है, और जो नरेटर है वो उसको जो है बहुत दूर जो है फेंक देती है. He accepts his approaching death and starts losing consciousness. तो उसको लगता है कि अब मृत्यु बहुत नज़दीक है, आने ही वाली है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो जो है कॉन्शियसनेस को लूज़ करना शुरू कर देता है, मतलब बेहोश होना शुरू हो जाता है. When the ship is about to overturn, a huge wave hit again and turns it right back. जब जहाज बिल्कुल पलटने वाला ही होता है तो दोबारा एक बहुत बड़ी वेव आती है, उस पर टकरा जाती है और उसको बिल्कुल सीधा कर देती है. He suffers injury in ribs and mouth. तो उसको रिब्स में और माउथ में बहुत सी इंजरीज आती हैं. He grabs the guard rail and sails into the ship's main boom. तो शिप का जो मेन हिस्सा है वहाँ पर वो पहुँच जाता है. किसकी हेल्प से? गार्ड रेल. जैसे आपने देखा होगा सड़कों की दोनों साइड
एक रेलिंग लगी होती है लोहे या स्टील की बनी हुई किसी मेटल की, ताकि इधर उधर ना गिरे, तो वैसे ही वहाँ पर भी लगी होती हैं शिप के अंदर, तो उसकी हेल्प से वो मेन जो उसका पार्ट है उसमें पहुँच जाता है। He instructs his wife Mary to guard the wheel as he realizes the ship has water in the lower part. अब वो अपनी पत्नी मैरी को कहता है कि वो व्हील वाला जो पार्ट है, यानी कि स्टीयरिंग जो होता है, उसको संभाले, क्योंकि उसको पता लग गया था कि शिप के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें पानी भर गया था। His crewman starts pumping out the water. उसके साथ जो crewman थे लैरी वीजल एंड हब सिगलर, उन्होंने पानी को बाहर निकालना शुरू किया। The narrator goes to his children cabin एंड चेक ऑन दैम, तो अपने बच्चों के कैबिन में जाता है और देखता है क्या वो ठीक हैं या नहीं। हिज डॉटर स्यू, दिस इज द निकनेम ऑफ सुजैन, इन्फॉर्म्स हिम अबाउट अ बम्प ऑन हर हेड विच ही इग्नोर्स बिकॉज हिज मेजर कंसर्न इज टू सेव द शिप। सो वहाँ पर जब वो जाता है अपने बच्चों से मिलने के लिए, उसकी डॉटर स्यू यानी कि सुजैन उसको बताती है कि उसके हेड पे एक बम्प आ गया है चोट लगने की वजह से, टकराने की वजह से, परंतु उसको इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका जो मेजर उस टाइम पे चिंता का विषय था वो था कि जहाज को बचाना। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गेपिंग होल, तो जिन होल से पानी आ रहा था नरेटर उनको वाटर प्रूफ करने की कोशिश करता है ताकि पानी अंदर ना आए। दिस मेक्स वाटर टू डेविएट ऑन द राइट साइड, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डेविएट मीन्स रास्ता बदल जाना, पानी उस रास्ते की तरफ ना आकर राइट साइड जाना शुरू हो गया। द हैंड पम्प गेट्स ब्लॉक ड्यू टू डेब्रिस एंड इलेक्ट्रॉनिक पम्प गेट्स शॉर्ट सर्किट। सो जो हैंडपम्प की सहायता से वो पानी को बाहर निकाल रहे थे वो ब्लॉक हो जाते हैं डेब्रिस की वजह से। डेब्रिस क्या होती है, जो हमारा मलबा बच जाता है या फिर कूड़ा कचरा होता है, उसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हाउएवर ही लेटर फाइंड्स अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप एंड कनेक्ट्स इट टू ड्रेन द वाटर। आखिरकार उसको लास्ट में एक दूसरा पंप मिल जाता है स्पेयर जो रखा हुआ था, और उसकी सहायता से वो पानी को बाहर निकालता है। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात वो पानी को बाहर निकालते रहे। देयर मेडे कॉल्स आर नॉट आंसर्ड एज दे आर इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब मेडे कॉल्स क्या होती हैं, ये रेडियो डिस्ट्रेस कॉल्स होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करती हैं, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे यूज आती हैं, सभी जहाज़ों में लगी होती हैं। जब भी कोई इमरजेंसी हो इंटरनेशनली ये जो है रिसीव हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो मेडे कॉल्स हमारी क्या होती हैं, इंटरनेशनल रेडियो डिस्ट्रेस वेव्स या फिर सिग्नल्स होते हैं जो कि इमरजेंसी के समय में काम आते हैं। तो ये भी उनके बंद हो गए थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो रिमोटेस्ट एरिया में थे, मतलब सबसे दूर वाला जो एरिया है वर्ल्ड का, वहाँ पर वो थे उस समय पर। Sue on the other hand has now a swollen black eye and deep cut in her arm। तो इस समय स्यू को और भी चोट लग गई थी और उसकी swollen black eye, सूजी हुई आंखें हो गई थी, स्वेलिंग आ गई थी और ब्लैक हो गई थी आई, एंड a deep cut in her arm, और उसकी आर्म में यानी कि बाजू में एक कट लग गया था। On being asked by her father about her injuries, she tells him she did not want him to worry as he was trying to save them। जब उसके पिताजी ने उससे पूछा कि तुमने चोट के बारे में क्यों नहीं बताया, तो कहती है कि उसको उसकी कोई चिंता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो देख रही थी, उसको ज़्यादा चिंता ये थी कि उसके पिताजी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो अपने पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती थी। आफ्टर 15 आवर्स द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल। 15 घंटे के बाद सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाती है। द नरेटर डिसाइड्स टू वर्क इन रोटेशन एंड रेस्ट। अब नरेटर ने डिसाइड किया कि टर्न बाय टर्न, कि कोई व्यक्ति रेस्ट करेगा, दूसरा जो है काम करेगा, इस तरह से रोटेशन एंड रेस्ट में वो काम करेंगे। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल्ड बट द लीक्स वर स्टिल देयर बिलो द वाटर लाइन। वाटर लाइन क्या होती है, जितने लेवल तक जहाज पानी के नीचे गया होता है वो वाटर लाइन होती है, अभी भी उस वाले पार्ट में जो है पानी अंदर आ रहा था। द शिप इज़ इन बैड शेप नाउ। अब उसकी शेप बिल्कुल जो है बिगड़ चुकी थी शिप की। इट इज़ नॉट इन कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया। तो अब वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने की कंडीशन में नहीं था। एंड सो दे डिसाइड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, आइल एम्स्टरडैम। तो वो कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले एक एम्स्टरडैम नाम का आइलैंड आएगा, वहीं पर रुक जाते हैं। और फ्रेंच साइंटिफिक बेस, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, ये अपने इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है कि एम्स्टरडैम जो आइलैंड है वो किसका साइंटिफिक बेस है, किस कंट्री का, दिस इज फ्रेंच साइंटिफिक बेस। एज द स्पोर्टिंग इंजन्स वर ऑल्सो डैमेज्ड द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन आर लो। अब उनके जो इंजन्स थे वो भी काम करना बंद कर दिए थे, तो उनका जो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। आफ्टर पंपिंग वाटर आउट कॉन्टिन्यूसली फॉर 36 आवर्स दे टूक अ साई ऑफ रिलीफ। लगातार 36 आवर्स तक पानी को निकालने के बाद उन्होंने एक राहत की सांस ली
ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट टू बी पम्प्ड आउट ऑफ द बोट। अब उसने बोट से या फिर समुद्री जहाज से थोड़ा ही सेंटीमीटर पानी रह गया था जिसको कि बाहर निकालना था। दे होस्टेड द स्टॉर्म जीब एज द मेन मैस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। अब स्टॉर्म जीब है क्या ये? जैसे आपने देखा होगा कि एक मेन पोल टाइप होता है जिसके ऊपर की एक पर्दा या फिर आप कह सकते हो मैट लगा होता है जो कि एयर की डायरेक्शन के साथ साथ चलता रहता है। कपड़ा लगा होता है जहाज पर, समुद्री जहाज पर। तो स्टॉर्म जीब क्या होता है? जो मेन पोल होता है जिसके ऊपर वो कपड़ा लगा होता है। होस्टेड द स्टॉर्म जीब एज द मेन मैस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मेन जो मैस्ट था, मेन जो कपड़ा था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। दे एट देयर फर्स्ट मील इन 2 days, तो 2 दिनों में उन्होंने पहली बार अब खाना खाया इतनी स्ट्रगल करने के बाद। सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स, तो उनके पास कुछ कॉर्न बीफ था और क्रैकर्स थे। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग एंड अगेन द ब्लैक क्लाउड्स टुक ओवर बाय द मॉर्निंग ऑफ January 5। तो अब दोबारा से फिर वेदर ख़राब होना शुरू हो जाता है और काले बादल फिर से छाना शुरू हो जाते हैं January 5। His son Jonathan told him that he didn't fear death as long as they were all together. So this line is very important because the title of our lesson has been taken from this statement. So जो टाइटल लिया गया we are not afraid to die if we can all be together, ये जोनाथन की वर्डिंग्स हैं। जोनाथन अपने पिताजी को कहता है कि मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता है जब तक हम सभी साथ हैं। So this is very important. This filled him with determination to fight sea. तो इससे उनके पिताजी को और भी हौसला मिलता है और वो समुद्र से लड़ने के लिए आगे जो है और भी प्रयास करते हैं। द स्ट्रगल कंटिन्यूड एंड द नरेटर ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। अब स्ट्रगल लगातार चलती रहती है और जो स्टारबोर्ड साइड मतलब जो उसका मेन जहाँ पर सब कंट्रोल होता है, स्टीयरिंग वगैरह और सिग्नल्स वगैरह जहाँ से आते हैं जहाज के, वो वहाँ पर उसको बचाने की कोशिश करना शुरू कर देता है नरेटर। द सेम इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स थिंकिंग दैट देयर एंड वॉज नियर। तो शाम को उसी दिन नरेटर उसकी वाइफ दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि उनका जो अंत है वो बिल्कुल ही नज़दीक है। ही चिल्ड्रन कॉन्टीन्यूसली सपोर्टेड हिम विच गेव हिम मोरल सपोर्ट टू कीप गोइंग। तो उसके बच्चे उसको लगातार सपोर्ट करते रहे जिससे कि उसको आत्मविश्वास बढ़ता रहा, जिससे उसको कि सहारा मिलता रहा। द वेव वॉकर सेल्ड थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट। तो वेव वॉकर जो है उस स्टॉर्म में से, तूफान में से निकलने में सफल रहा और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन पर, जो कि एम्स्टरडैम आइलैंड बीच में ही था। द नरेटर देन कैलकुलेटेड देयर एग्जैक्ट पोजीशन वाई वर्किंग ऑन द विंड स्पीड। तो नरेटर उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं डिग्रीज का यूज करते हुए। वाइल ही वॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग इट, शी गेव हिम अ कार्ड दैट शी हैड मेड एक्सप्रेसिंग हर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स द फैमिली। तो इसके लिए जब भी वो जो काम करने वाला था, कैलकुलेशन करने का काम बड़ा ही ब्रेनस्टॉर्मिंग था, दिमाग को डिस्टर्ब कर देने वाला था, तो उसी समय स्यू एक कार्ड बनाती है और अपने पिताजी को देती है जिस पर अपना प्यार और ग्रेटिट्यूड उनकी तरफ दिखाती है। ही इंस्ट्रक्टेड लैरी टू स्टीयर द कोर्स टू 185 डिग्री। तो लैरी को ऑर्डर देता है कि 185 डिग्री की तरफ जो है जहाज को जो है टर्न कर दिया जाए। ही सेड दैट इफ़ दे वर लकी दे कुड होप टू फाइंड एन आइलैंड बाय 5 PM। तो उसने कहा कि यदि वो इतना लकी हुए, भाग्यशाली रहे, तो शाम को 5 बजे तक उनको आइलैंड मिल जाएगा। ही डोज्ड ऑफ एंड सडनली गोट अप अराउंड 6 PM। तो उसको नींद आ जाती है और वो शाम को लगभग 6 बजे उठता है। ही बिलीव दैट दे डिडंट मेक इट एंड वॉज डिसअपॉइंटेड। जब वो उठता है सोकर तो उसको लगता है कि वो एम्स्टरडैम आइलैंड तक नहीं पहुँचे हैं और बहुत निराश हो जाता है। हिज सन केम एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हाउ दे रीच्ड द आइल एम्स्टरडैम आइलैंड एंड ही कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन। तो उसका बेटा वहाँ पर आता है, उसको बताता है कि किस तरह वो एम्स्टरडैम आइलैंड तक पहुँचे हैं और वो अपने पिताजी को बताता है कि आप बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। दे रीच्ड द आइलैंड विद लिटिल स्ट्रगल एंड विद द हेल्प ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो वहाँ पर वो एम्स्टरडैम आइलैंड पर बहुत स्ट्रगल करने के बाद और वहाँ पर रहने वाले इनहेबिटेंट्स, वहाँ पर जो लोग रहते थे, उनकी सहायता से वो पहुँचे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ पर कितने लोग रहते थे आइल एम्स्टरडैम पर। सो दिस इज 28। वहाँ पर 28 लोग रहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द होल टीम, द फैमिली एंड 2 क्रू मेंबर नेवर स्टॉप ट्राइंग। तो पूरी ही टीम ने, पूरे परिवार ने, उनके क्रू मेंबर्स ने ट्राई करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव्ड देम। तो उनकी स्ट्रगल, उनका जो हार्ड वर्क था, फाइनली उसने उनको बचा लिया और वो एम्स्टरडैम आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। सो द मैसेज फ्रॉम द लेसन इज दैट टीम वर्क कैन विन और कैन हेल्प टू फेस एनी प्रॉब्लम इन द लाइफ। यदि टीम वर्क करें, मिलकर सभी काम करें, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी सामना
किया जा सकता है. सो दिस वॉज द डिटेल्ड समरी ऑफ द लेसन. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. सो जो जो पॉइंट्स इसमें मैंसन किए गए हैं उनको प्लीज़ बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन. थैंक यू वेरी मच.